Thank you, Amit ji, Mukhyamantri ji Shivraj Singh Chauhan ji. Ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you to India Today magazine's first edition of Madhya Pradesh First. We are also deeply honored, Mukhyamantri ji, that you could come and deliver the welcome address despite your busy schedule. And ladies and gentlemen, let's give a very warm round of applause for this. Mukhyamantri ji, I come from Karnataka, but I have a family connection to Madhya Pradesh. My wife's father and all her mamas grew up in Indore, and her grandfather was principal of Holkar College, and her grandmother was principal of the Sai School in Indore. So while she speaks Shuddh Hindi, I don't, because she laughs whenever I make an attempt to do so with my South Indian accent. So I have a complex on this. So I will stick to speaking mostly in English in my welcome address. So to begin, Mukhyamantri ji, for the first 2 decades, India Today magazine has pioneered the concept of the State of the State survey. And I know when we came to your house previously, you have all the state awards lined in your cabinet over there. And this annual survey is considered to be the gold standard for judging the performance of various states. More recently, we started what we call the State of the States, where we focused on a particular state. While the State of the States was a national survey, the State of the State looked at state development because the state is the microcosm of India's development. The district first, the state, and then the country. If the district doesn't develop, the state doesn't develop. If the state doesn't develop, the country doesn't develop. And so we started the State of the State, and we had come to Madhya Pradesh, and thank you very much, sir. In 2018, you were there to distribute the awards to the various winning states. So we have taken this step further, and we have now started what we call Madhya Pradesh First, because we feel that we have already awarded the districts, we have analyzed the entire development. Now the idea is to present how can Madhya Pradesh, under your leadership and political leadership, become the leading state of the country. That's the whole endeavor of this particular conclave, and we have focused, you've been a veteran leader, more than 15 years now as Chief Minister, as well as this state is very key to the development of India. And the idea is to put together the best brains to come up with an agenda, a vision that you could implement, a lot of suggestions that are there. And we have put together in this conclave major sessions that would look at how to add great value to agriculture, which is one of the mainstays, how to maximize industrial development, what are the challenges for Madhya Pradesh to achieve its target of what you said, $550 billion economy, and how to push forward women, Nari Shakti, which you are focused on, also how to harness the energy of youth, Yuva Keli, and interesting panels to discuss the politics of the state. So apart from you, Mukhyamantri ji, we also have pleasure and the honor that Union Minister for Civil Aviation and Steel, a political stalwart from the state, Shri Jyotiraditya Scindia, will be addressing this gathering, but he'll come live via video. And of course, former Chief Minister of Madhya Pradesh, Kamal Nath ji, will also deliver a keynote address later in the evening. So we make sure it is a very broad-based conclave, very focused on this. Now, I mentioned Karnataka earlier because also, not just because I didn't want to address this gathering in Hindi, but also it is a very good example of an amalgamation of various states. My home state, you will see that it is Hyderabad, Karnataka, there is Bombay, Karnataka, there is also Tamil Nadu, Karnataka, Madras Presidency and Bombay Presidency. And I thought that was a unique combination. But now I find that when I studied Madhya Pradesh and when I was talking to my wife, actually Madhya Pradesh is a mini India, if you really look at it. And it is a sum of all the parts of the states around it, both its distinct languages, its food and culture. It is created by many. And if you look at the various parts, whether it's the Vindhyas, the Malwa region, Madhya Bharat, Bundelkhand, Chhattisgarh, Mahakoshal regions, I'm talking before the separation of the two, it is one of the most unique miracles in India that you have been able to keep the unity of the state and present it as a cohesive entity despite this diversity that's there. Now, we all know that Madhya Pradesh is primarily an agrarian state, and you're focused tremendously in your tenures as Chief Minister. It has very rich resources, fuel, minerals, agriculture, and biodiversity. It has the highest reserve of stone, diamond, and copper in India. In fact, it is the only diamond-producing state in the country. And that is why I believe that
with all these rich resources, Madhya Pradesh's criticality to the India story is now coming to the fore. At one time when we reported Madhya Pradesh in the 80s, when I used to come and tour, there was the great thirst, Pani bhi nahi tha, and it was considered one of the Bimaru states, along with Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh. Madhya Pradesh was there. Today you see a great transformation. The state has made rapid strides in the fields of agriculture. It has emerged the top producer of several crops. I know it's even beat Punjab and Uttar Pradesh in terms of food wheat production, which is amazing sort of development that's there. It is also now, under your leadership, emerging as an industrial hub with textiles, auto parts. We've been to Indore. We've seen the kind of development that a lot of the industry, whether it's pharmaceuticals, food processing, and mineral-based industries, it has done extremely well in the past few years. And thanks to you, Mukhyamantri ji, for your vision. Madhya Pradesh is a pioneering state in various welfare programs, which, just to mention a few, the Ladli Lakshmi program, the Kanyadan Yojana, and the Sambal program. These have been followed by other states it's a good indicator of their success. Because of these various schemes, particularly for women and the youth, you've always been called Mama on this. But I hear that you've got a new terminology, bulldozer Mama, but we'll talk about this later for whatever reasons that terminology has come. But more than that, I think, looking at environment, I'm very happy to see that, and I used to write a lot on environment, and I've come to a lot of the national parks, the tremendous development of these national parks that you've fostered. I think it's very important. And we were just sitting and chatting, and you said you were planting a tree or 3 trees every day. So he's planted, I think, now almost, 2,000 trees in these things, or 1,500 trees. Let's give him a very warm round of applause for that thing. Every day in the morning. Every day in the morning, he goes at 6, plants a tree, I think, or plants 3 trees, something that we all need to do to ensure that Madhya Pradesh is forested, as well as the rest of the country. And because of that, also, let's not forget the tourism potential the state has. And that is just beginning to unlock itself. So it has tremendous, and another point, because it is located in in the heart of India, the logistics industry could use this as a major center for development. Because from Madhya Pradesh, you can reach all the other states. So if one of the big logistics companies, or 2 or 3 of them come, this could become the hub of the country. And if you look at what's happened in the last 2 decades, and particularly during your tenures, the state annual growth, or the GSDP, which you know more, has been very impressive. And despite the fact that COVID has happened, it is still growing at 10%, which is laudable. And the other thing is that between 2015 and 16 and 2023, or 22-23, the GSDP increased at a combined annual growth rate of 11.39%. And let's give the Chief Minister a very warm round of applause for that achievement as well. In fact, Madhya Pradesh, as I was mentioning earlier, has always won. When we did the 2021 State of the States Award, it figured among the top 3 best performing big states, and also one of the most improved big states in agriculture, particularly. So if you see the turnaround that agriculture has happened, it has been growing at the rate of 10% in the last 2 decades. That's very, very amazing. And that is a transformation that we've seen. It has, powered India's grain production. Of course, in the last couple of years, we have seen how agriculture itself has now contributed to what they call the gross value added thing, to almost now increased from 33.85% a decade ago to 46.98% in 2021. So that's an enormous growth that agriculture has contributed. And Mukhyamantri ji, because in your recent efforts, where you looked at Krishi and the farm sector very deeply, you have started maximizing farm income. Well, doubling the farmer's income is now your mission that is there. And if you see, you're focused on value chains of 7 prominent crops that you are doing. We'd like to hear a little more of that when you speak. You've also changed the marketing strategy, we find. And last year you began procurement of the farmers' produce at the farm gate level. The mandi system you've almost given up, and you go directly and purchase, which I think is a revolutionary step to free up the farmers and allow them to produce much more and market them better.
So the entire marketing has gone online, and it's one of the most modern marketing systems that we have of agriculture, and a model for other states to follow. Briefly, I want to touch about the industrial development of the state, which you've also now, last time when we did the conclave, you had mentioned in 2018 that you were pushing industry, a lot of industry to come into Madhya Pradesh. We see in your budget this time, 2022-23, the government has approved the construction of 2 major industrial parks in Bhopal, apart from one in Indore. We hope that that will come up quickly. We also see 2 special export zones are already functional in the state, and 11 new industrial areas are being developed in various parts of the state. So we've also seen the growth of the auto cluster that is there at Pitampur near Indore, and of course, Mandideep near Bhopal. These are big developments that are there. And according to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, the cumulative foreign direct investment inflow into Madhya Pradesh now stands at close to US $320 million. Now that is something, quite an achievement, and this has happened between October 2019 and December 2021, not being impacted by the COVID. And let's give the Chief Minister a very warm round of applause for that development as well. And importantly, I think, apart from industry, here, the Madhya Pradesh government has also focused on medical education and infrastructure. And that is, we've seen even in the recent budget, you've increased the number of MBBS seats from close to 1,000 seats that's there, and 22 new medical colleges will be functional in the state. Also, you've approved, I think, a very important development in Ujjain, the medical devices park, because this is something that India can play a lead role in. And I think Madhya Pradesh is playing that role, and we wish it all success. So also road construction, infrastructure in terms of that. Union government has sanctioned over rupees 1.25 lakh crore, and there are almost 45 highway projects in Madhya Pradesh that is now taking shape. So the other thing I think is your emphasis on environment, apart from planting trees, the renewable energy focus that you've brought about. I think that is also quite amazing. You have the world's largest floating solar energy project with a capacity of over 600 megawatts at the Omkareshwar Dam on Narmada River in the Khandwa district of Madhya Pradesh. And this year, to make it even better, you have announced something like 270 EV charging stations to encourage electric cars to be moving around in Bhopal, Gwalior, Jabalpur, and Indore. All this is remarkable because much of this has happened during the tenure. You're probably, since the last 19 years when a BJP government has been, was voted in, for more than 15 years, you've been the Chief Minister. In fact, in March this year, you have become the longest serving BJP CM in the country, and let's give a warm round of applause for that as well. Mukhyamantri ji, I'll end with saying that while in your previous 3 terms, you have marked by many initiatives. But unfortunately, in the 4th term, in the commencement of your 4th term, March 2020, the COVID pandemic broke out. And much of your energies were spent on handling and responding to the disease and the crisis that all of us in the country faced. Your 4th term was also marked by a major political challenge where you had to hold 28 by-elections. We know the reasons how the state was formed. I won't get into that. But you passed that political test with flying colors. You were able to win the maximum number of seats in that thing. And you also described all the new members. When people said, can these new 28 or 19 new members that finally were elected, can they mix with this party? And you said, I like the phrase you use, it is like sugar dissolving in milk. And they have, been united in that sense. But we would like to listen to you, your experiences in running this government, particularly given the fact that the circumstances in which it was formed. And we also look forward to hearing from you the various initiatives you've taken in the 4th year and your vision ahead, since there's an election going to happen next year. What are the things that you think you've achieved in this? Has it been a difficult task? Or 2 saal hai, what are you planning to do on that? With these few words, let me welcome you to deliver the inaugural keynote address. Ladies and gentlemen, Mukhyamantri ji, Shivraj Singh Chauhan. Thank you, sir. आदरणीय राज जी और उपस्थित मित्रों,
सबसे पहले मैं देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीम इंडिया टुडे का और उपस्थित सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं स्टेट ऑफ द स्टेट्स मध्य प्रदेश फर्स्ट। तो शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हो रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में कुछ भारत की प्रतिबद्धताएं जताई है और मध्य प्रदेश बाकी सब तरह के डेवलपमेंट के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। अभिराज जी ने कई चीजें आपको बताई। हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर डैम में हम जल्दी उसका काम प्रारंभ करने वाले हैं। रीवा में जो हमारा पावर प्लांट था, सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का, उस समय सबसे बड़ा पावर प्लांट था। दिल्ली की मेट्रो को भी वहां से बिजली जाती है। इसके पहले नीमच में हमने शुरू किया था। नीमच, शाजापुर, मुरैना, छतरपुर, जो अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, उसमें मध्य प्रदेश बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, हम लेपर्ड स्टेट भी बन गए और जल्दी मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बनने वाला है। मध्य प्रदेश ने 2 प्रयोग, एक हमारा जो पन्ना का टाइगर जो पार्क था, टाइगर रिजर्व था, वहां टाइगर खत्म हो गए थे। हमने दूसरी जगह से लाके वहां फिर से टाइगर को पुनर्स्थापित करने में सफलता पाई। मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ भी यहां बैठे हैं, अभिलाष जी जैसे, वो अपने आप में एक प्रयोग था। और चीता तो देश से खत्म हो गया था। एक दूसरे महाद्वीप से मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो पालपुर में चीता आएगा। तैयारियां पूरी चल रही है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और भारत सरकार प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश साथ है। पर्यावरण की दृष्टि से लगातार हमको न केवल अपने देश को, हर एक राज्य को, क्योंकि जब राज्य करेंगे तब देश करेगा, इसलिए कई तरह के इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। अब किसी को अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत पेड़ लगाने से ही होती है। क्योंकि हम भाषण देते रहें और खुद ना करें तो उसका असर नहीं पड़ता। जैसे भोजन जरूरी है, वैसे पेड़ लगाना जरूरी है। और अब तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे बड़ी संख्या में। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया और लोगों से कहा कि भाई रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन पेड़ लगा दो, मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगा दो, इससे अच्छी शादी की बरसगांठ और क्या होगी। बच्चों के जन्मदिन पे लगा दो या पूर्वजों की पुण्य स्मृति में लगा दो, तो सहज ही लाखों पेड़ लगते हुए चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास की कहानी तथ्यों से राज जी ने रखी, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। कोविड के दौरान, क्योंकि चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना, तो 23 मार्च को मैंने शपथ ली और 24 को लॉकडाउन लग गया। तो पहली प्राथमिकता थी हम कैसे कोविड को कंट्रोल करें। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, आपदा को अवसर में बदल दो। और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। मैं उस समय अस्पताल में एडमिट था कोविड के कारण, मुझे भी कोविड हो गया था।
तो लेटे लेटे मैंने सोचा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और वहीं से हमने रोड मैप बनाया। वर्चुअली कई विद्वानों को देश भर के जोड़ा और हमने 4 चीजें उसमें तय की जिस पर हम फोकस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत ब्रीफली बताऊंगा मैं आपको। एक, हम सब इंफ्रा का महत्व जानते हैं, और एक जमाना था जब गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढा कि गड्ढम गड्ढा क्या था मध्य प्रदेश में, वो जानकारी में है। लेकिन सामान्य तौर पे इंफ्रा हमने काफी बेहतर कर लिया है। लेकिन अब हमारे दिमाग में ये हमारे चंबल के बीहड़ थे, कभी वहां डकैत हुआ करते थे। अब डकैत तो बचने नहीं दिए, तो हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। दिल्ली से बहुत पास है, और दिल्ली नोएडा आसपास की जो हालत हो गई आप जानते हैं। हमारा अटल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगा, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, नई टाउनशिप्स हम कैसे ला सकते हैं, अनेकों संभावनाओं पर विचार करके हम उस पर काम कर रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक नर्मदा एक्सप्रेस वे, और उसमें भी हमारे सारे प्रमुख शहर कवर होंगे। और उद्देश्य यही है कि केवल एक्सप्रेस वे नहीं, वो मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन बन जाए। नई टाउनशिप्स की बात हो रही है, हमने भी इंदौर और भोपाल के बीच में जमीन चिन्हित कर ली है, एयरपोर्ट से लेकर बाकी सारी फैसिलिटी, और एक नया शहर जो उद्योग और रोजगार की अनंत संभावनाएं लिए हो, उसको हमने प्लान किया है। इंफ्रा के क्षेत्र में कुछ प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन इंदौर जैसे शहरों में, भोपाल जैसे, अब उज्जैन से हम शुरू कर रहे हैं। महाकाल महाराज के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। स्टेशन को उतरते हैं, बाय रोड जाते हैं, कई बार जाम लगता है, तो हम क्या स्टेशन पर उतरे, ऊपर केवल कार हो, उसमें बैठे, सीधे महाकाल महाराज के मंदिर के पास उतर जाएं। ऐसे कई प्रयोग भी हम, परिवहन के लिए धरती भी, और धरती के साथ साथ आसमान का, पानी का और आसमान का भी कैसे उपयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, उसका उपयोग करके हम कर सकते हैं। लेकिन केवल इंफ्रा नहीं, 2 चीजों पे मुख्य रूप से हम फोकस कर रहे हैं। एक, शिक्षा, और दूसरा, स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में एक प्रयोग हमने किया है, सीएम राय स्कूल का। देखिए, एक पॉपुलर डिमांड होती है कि हर गांव में स्कूल खोल दो, हर गांव में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। हमने खोले भी बहुत, उसके कारण बेटियां बड़ी संख्या में स्कूल में आई। लेकिन हर गांव में स्कूल खोल के अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीचर्स उपलब्ध कराना, विशेषकर विज्ञान के, गणित के, बड़ा कठिन काम है। 20, 25, 30 गांव के बीच में एक सेंटर, जहां एक अत्याधुनिक भवन के साथ उसमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड्स हो, स्मार्ट क्लास हो, और रोड्स बहुत बेहतर है। बस जाए बच्चों को लेने, सवेरे बच्चों को ले स्कूल छोड़े, शाम को घर छोड़े आए, और दिल्ली और भोपाल से बैठ के भी कोई पढ़ा सके। एक सीएम राय स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारा शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए इस साल 370 हमने शुरू किए हैं। बहुत प्रारंभिक अवस्था में, अभी शुरू हुए। बिल्डिंग बनने में तो समय लगेगा, जहां जहां बिल्डिंग मिली हमने शुरू किया। एक और हमने प्रयोग किया, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कई बार गांव में रहने वाले, गरीब और किसान परिवारों से आने वाले हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा में इसलिए पिछड़ जाते हैं कि वो अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। अंग्रेजी अच्छी ना जानने का या ना जानने का खौफ उनके दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को प्रकट ही नहीं कर पाते। इसलिए मध्य प्रदेश इस बार प्रयोग कर रहा है कि हिंदी की, मेडिकल की पढ़ाई भी हम हिंदी में गांधी मेडिकल कॉलेज में इस साल शुरू करने वाले, मातृभाषा में पढ़ाई। हमारी नई शिक्षा नीति में आप सबको पता है कि मातृभाषा में शिक्षा पे जोर दिया गया है। हेल्थ के क्षेत्र में कायाकल्प अभियान हमने प्रारंभ करके नीचे तक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां सारी बुनियादी आवश्यकताओं की, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभियान चलाया हुआ है। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से कई प्रयोग मैंने, जो तीसरी बात हम कह रहे हैं,
अनेकों प्रयोग, डीबीटी आप जानते हैं, अनेकों योजनाओं में सीधे खाते में पैसा जाता है। लेकिन उसमें भी मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। हमने तय किया साइकिल का पैसा, जो बेटियों को साइकिल देते थे, बाद में बेटों को भी देना शुरू किया। हमको लगा सीधे खाते में डालना चाहिए, साइकिल खरीदने के बजाय। सरकार कहां साइकिल खरीदने के चक्कर में पड़े, सीधे खाते में डाले तो दूसरे साल साइकिलों की संख्या कम हो गई। हमने आते जाते बच्चों से पूछा कि बेटा साइकिल का पैसा दिया था, साइकिल? बोले वो तो पापा ने कहीं और खर्चा कर दे मामा। तो अब हमने इस साल तय किया है ई वाउचर के माध्यम से हम उसको ई वाउचर देंगे, वो साइकिल ही खरीद पाएगा, दूसरी चीज में खर्चे नहीं कर पाएगा। और हमने किसानों को अलग अलग योजनाओं पे जो अनुदान देते हैं उसके लिए भी ई वाउचर, उसका प्रयोग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक नहीं गुड गवर्नेंस के अनेकों प्रयोग। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समय की सीमाएं हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, आज पूरी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अब केवल कृषि विकास दर नहीं है, इस साल अगर आप करंट प्राइजेज पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%, देश में सबसे ज्यादा। अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का साइज आप देखेंगे, जीएसडीपी, तो पहले कभी 3-4 तक 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। इस साल 11.5 लाख करोड़ से भी हम आगे निकल गए। 800 गुना वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। भारत की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, अब 4.6% हो गया है। हम बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो मूल है अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने का, और उस कारण रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, उसको अगर देखेंगे तो इस साल 48,800 करोड़ रुपया हमने बाकी सब कठिनाइयों के बावजूद भी रख के और बेहतर काम करने का प्रयास किया है। रोजगार के अवसर कई तरह से सृजित होते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। 3-4 तरीके जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, रोजगार से सीधा अर्थ निकाला जाता है शासकीय नौकरियां। हम जानते हैं उसकी सीमा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक साल में 1 लाख शासकीय सेवाओं में भी रोजगार मिले, उसका पूरा रोड मैप हमने बनाया हुआ है। दूसरा, इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में तेजी से आ रही है। आपने स्वयं बताया, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, मध्य प्रदेश के ओडी ओपी कई जगह कमाल कर रहे हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चीजें बना रहे हैं वो बहुत पॉपुलर हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा एक तथ्य जिसकी गहराई में जाके मुझे भी आश्चर्य हुआ। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का टर्नओवर और सबका मिला लिया जाए मध्य प्रदेश का तो 20,000 करोड़ रुपया है, जो हमारी 40 लाख महिलाएं काम कर रही हैं पूरे मध्य प्रदेश, और वह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही है। तो उसके माध्यम से रोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, हमने प्रयत्न पूर्वक, एसएलवीसी की मैं हर महीने मीटिंग करता हूं और महीने में एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सारी योजनाओं को एक जगह लाके हमारा टारगेट जो पिछली बार हमने अचीव किया, 12 जनवरी को हमने शुरू किया था कि कम से कम 2.5 लाख रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स के जरिए हम उत्पन्न करें। फिर जो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है उसके कारण रोजगार के अलग अवसर, तो उसके लिए बच्चों को ट्रेंड करना। देखिए, स्किल्ड मैन पावर अगर आपके पास है तो फिर काम की कहीं कमी नहीं है। भोपाल में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। बच्चों को हम ट्रेंड करेंगे और ट्रेड भी ऐसे के जिसमें तत्काल उनको जॉब मिल जाए। हम मॉडल आईटीआई बना रहे हैं संभागीय मुख्यालयों पर, स्किल मैन पावर तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रोजगार हमारा फोकस है, और इस साल हमारा टारगेट है 32 लाख लोगों को सब तरह की योजना मिला के हम रोजगार देंगे। अलग अलग योजनाएं जो मैंने आपको बताई। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एक संक्षिप्त सब बातें आप जानते हैं, कहना संभव नहीं है। एक रोड मैप मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए, देश फर्स्ट रहे,
ये हम सब का संकल्प और सपना है। हम जो बैठे हैं किसी भी क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। यह देख के हम सबको आनंद और प्रसन्नता होती है। मध्य प्रदेश का योगदान उसमें अधिकतम हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कोई कसर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत और इंडिया टुडे को धन्यवाद। Ladies and gentlemen, let's give him a very, very warm round of applause for this. And the Honorable Chief Minister has very kindly agreed to do a question and answer session. And for this, I would like Mr. Saurabh Dwivedi, my colleague and editor of India Today Hindi, and of course the very popular show Lalan Top, to come and join us as part of this, if you don't mind, Mukhyamantri ji. Mic देना. तो मुख्यमंत्री जी, इस सेशन में थोड़ा पॉलिटिक्स भी पूछेंगे इसमें। लेट अस स्टार्ट विद ये रेवड़ी कल्चर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया वी शुड बी अगेंस्ट द रेवड़ी कल्चर। आपने वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारे हैं, यू हैव आल्सो गिवन फ्रीबीज बोलते हैं। व्हाट इज योर पोजीशन ऑन द रेवड़ी कल्चर? मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको बिल्कुल ठीक मानता हूं। रेवड़ी कल्चर का मतलब केवल वोट लेने के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा हो जाए कि मैं फ्रिज दूंगा तो उन्होंने कहा मैं टीवी दूंगा फ्री में, ये भी फ्री में ले लो, वो भी फ्री में ले लो। मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे जो हमारा गरीब भाई बहन है उसका भी हमारे संसाधनों पर हक है, और इसलिए कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको सहयोग करना, मदद देना वो जरूरी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते हैं गरीब के लिए तो मकान खड़ा होता है, वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, वो जरूरत है। पीने का पानी पहुंचता तो रेवड़ी कल्चर नहीं है। अगर इलाज की योजना बनती, हम सब जानते हैं गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए तो कहां से इलाज करवाएगा? तो उसके इलाज के लिए सहायता करना रेवड़ी कल्चर नहीं है। केवल वोट हथियाने के लिए इनने ये कहा तो मैं ये कह दूं, ये होड़ रेवड़ी कल्चर है जो ठीक नहीं। सौरभ, शिवराज जी, आप सबसे लंबे समय से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी बहुत सारे होंगे, पर समय की कमी है तो मैं बहुत ही कट टू कट बात रखूंगा। पिछले दिनों विजुअल्स आए कि कई जगह पानी का भराव, और खबर आई कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई बांध ना दरक जाए, कुछ ना हो जाए। धार समेत कई जिलों से प्रदेश ये जानना चाहता है कि जल भराव के मामले में वो कितना सुरक्षित महसूस करें। एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा सौरभ जी के मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, और ये केवल आजादी के बाद की नहीं थी। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के थी। हमने एक अभियान चलाया, मुझे लगा मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाना है तो सबसे जरूरी हम कृषि के सेक्टर पर ध्यान दें। आज 44 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था कर दी, उसको मैं 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाऊंगा। उसका रोड मैप तैयार है, नई नई सिंचाई की योजना पर काम चल रहा है। अब इतने सारे डैम बने भी हैं, बन भी रहे हैं। उनमें से एक डैम था जिससे पानी का सीपेज, और पानी का सीपेज कई डैम से होता है, मतलब पूरा का पूरा पानी रुकता है ये कभी नहीं होता। आप किसी भी डैम पे जाके अगर देखोगे ध्यान से या दूरबीन लगा के या, तो सीपेज कुछ ना कुछ होता है। वो सीपेज ऐसा था जो जितनी सीमा सीपेज की मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा था, और जब ये खबर आई तो जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी थी, इसलिए लगातार हमने मॉनिटरिंग करना शुरू की। बांध टूटते ही ये तय नहीं था, लेकिन 0.1% भी अगर अचानक टूटता तो तबाही आ जाती, और इसलिए फिर हमने विशेषज्ञों, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मेरी अमित भाई से, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से बात हुई,
एक्सपर्ट्स की टीम वहां से भी आई, हमारे भी एक्सपर्ट्स थे, और फिर यह तय किया कि एक डैम में कट लगा के इस पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। यह जरूर है कि अगर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है तो फिर मैं सो नहीं सकता चैन से, और इसलिए मैं रात रात भर बैठा। अब बांध पे कट लगाने में भारी मशक्कत हमको करनी पड़ी। एक तरफ चट्टान, दूसरी तरफ मिट्टी, उस बीच में से काटेंगे तो एक साथ नहीं कटेगा, लेकिन अंततः सुरक्षित तरीके से पूरा पानी बाहर निकाल दिया। अभी भी सारे बांधों पर हम नजर रहे, और ये बांध भी पूरा नहीं बने तो निर्माणाधीन था, गेट वेट नहीं लगे थे इसमें, केवल मिट्टी की पाल बनी हुई थी। जांच के भी हमने निर्देश दिए कि कहां कमी रह गई, उनको भी कोई दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सारे बांध सुरक्षित है, पूरी नजर रखे हुए हैं हम। लेकिन कई बार ऐसी घटना हो जाती है तो मीडिया से खबरें भी फिर वैसे ही जाती है, अब किसी बांध से जरा सा पानी और फलाने बांध में भी, फलाने बांध में भी, तो कुछ समय तक वो विषय चलता है, लेकिन हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे बांध सुरक्षित है। मुख्यमंत्री जी, ये तो अच्छा है ना कि सरकार भी इसी बहाने अलर्ट मोड पर लेती है। आप निर्माणाधीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, आपका नाम शिवराज है, शिव की नगरी उज्जैन में एक कॉरिडोर है जो बनकर तैयार है, हम कब उम्मीद करें उसके उद्घाटन की? मुझे लगता है कि अभी बरसात में भी काम चल रहा है। देखिए, उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी, जहां करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो और अद्भुत बने, ये हमारी कोशिश थी, और अब वो लगभग बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि वो लोकार्पित करें, तो बरसात के बाद ही होगा, क्योंकि बरसात में वैसा कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो जब भी समय मिलेगा तब करेंगे, फिर अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, जो भी तिथियां तय हो। पीएम की डेट में? जी, पीएम। मुख्यमंत्री जी, आपने बताया आप रोजगार 32 लाख जॉब्स देंगे, आप कहां से मिलेंगे? व्हाट इज योर प्लान टू डू दिस? देखिए, सारी मैंने जो स्कीम्स हैं, एक सरकारी रोजगार, दूसरे गैर सरकारी। अब पिछले साल ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, फिर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, क्योंकि वो भी रोजगार है, अलग अलग चीजें बनाती हैं वो और उसके बाद बेचती हैं, उनको पिछले साल हमने लगभग 1400 करोड़ रुपया अलग अलग कामों के लिए दिए थे। इस बार 3000 करोड़ का हमारा टारगेट है। मैं किस योजना में कितने रोजगार दूंगा उसको काउंट करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्वरोजगार की योजनाओं से, ये फैक्ट्रीज में प्लेसमेंट के माध्यम से, ये जो हमारा पूरा इंफ्रा बन रहा है अलग अलग, उसमें जो प्राइवेट जॉब मिलेगा उसके माध्यम से, और जहां स्किल्ड मैन पावर की जहां जहां जरूरत है वो भी तैयार करके हम जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, जब हम यहाँ पर आते हैं तो 2-3 चीजें हमें बार बार बताई जाती हैं। एक कहा जाता है कि साहब शिवराज जी 24 घंटे के नेता हैं, रोज सुबह टिफिन बांध के निकलते हैं कि भाई आज प्रदेश में कहां चलना है। वो भोपाल बैठ के नेतागिरी नहीं करते हैं। और एक जुमला उसके साथ चिपकाया जाता है कि हर जगह मैं हूं ना, बाढ़ आई है तो, कहीं उत्सव है तो, हर जगह शिवराज जी पहुंचते हैं। पर राजनीति में इसके समानांतर यह भी देखा गया कि जब आपके पहले के कार्यकाल होते थे तो आपके सहयोगी कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ भाषण देते थे तो आधा टेंशन उधर जाता था, और अब हम लोग देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी आपके मंत्री हैं, वो लगातार कुछ कुछ भाषण देते हैं या बयान देते हैं तो फोकस उधर जाता है, और विरोधी ये कहते हैं कि साहब शिवराज जी की जो एकमुश्त पकड़ होती थी उसको चैलेंज मिल रहा है। आप इस तरह की टिप्पणियों पे कैसे रिएक्ट करते हैं? कैलाश जी मेरे परम मित्र हैं बचपन से, और नरोत्तम जी विश्वस्त सहयोगी। आप इसी से देख लीजिए कि लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस से कई मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके साथ सरकार हमने बनाई है, तो चलेगी कि नहीं चलेगी, रोज झगड़े होंगे, क्या होगा, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे दूध में मिल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही समरस होकर हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक आपने चूंकि दूध शक्कर का जिक्र किया, मैं ये जानना चाहता हूं, राजनेता के तौर पर आप इतने मंझे हुए हैं, दशकों का अनुभव, कि वो शिफ्ट कैसे होता है कि चुनाव हो रहा है तब नारा है कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, और फिर शिवराज जी को उन्हीं ज्योतिरादित्य के साथ सरकार चलानी पड़ रही, तो वो समन्वय किस स्तर पे होता है?
समन्वय तो दिल से होता है जी। हो गया है। अगर ईगो आपके अंदर ना हो, सबको साथ लेके चलने की भावना हो, आप दूसरे की भी भावनाओं का आदर करें, तो मैं समझता हूं कि प्रेम से तो पत्थर पिघल जाता है, तो इंसानों की तो बात ही क्या। Since we are all मैं that- सचमुच में बता रहा हूं, जी हृदय से बता रहा हूं, केवल आपके सामने कहने के लिए नहीं। मुझे एक दिन भी कभी तकलीफ नहीं हुई काम करने में। ज्योतिरादित्य जी के श्रीमान साथ। ज्योतिरादित्य जी के साथ, उनके साथ जो आए थे हमारे मित्र, हमको यही नहीं लगता कि कौन पहले बीजेपी में था और कौन बाद में आया है। सब पूरी तरह से समरस होकर मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, यू आर सच अ वेटरन लीडर आपने, बट रिसेंटली जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया, आपका नाम नहीं थे और गडकरी साहब का नाम भी नहीं थे, क्या रीजन है इसमें? ये सर, ये वो सवाल है जो सब जगह पूछा जा रहा है, एलिफेंट इन द रूम। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से ड्रॉप कर दिए गए बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं, और दिल्ली में बैठे राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि शिवराज का राजनीतिक भविष्य सिर्फ भोपाल और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, ब्रांड शिवराज की बाहर भी बात होती है। तो दिल्ली की आकांक्षाएं, दिल्ली में आपका प्रतिनिधित्व, वो बोल रहे हैं डिमोशन कैसे होगा इसे? एक तो मैं ये बता दूं आपको, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े लक्ष्य को सामने रख के बरसों से काम कर रहे हैं। और जब काम करना शुरू किया था तो हमको पता नहीं था कि हम एमएलए भी बनेंगे। मैं तो इमरजेंसी में, जब मेरी उम्र 17 साल की थी, मैं जेल चला गया था आपातकाल का विरोध करते हुए। 1974 में मैं जेपी मूवमेंट से जुड़ गया था और उसके बाद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। कभी कल्पना नहीं की थी कि एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन एक बड़े लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, वो है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का लक्ष्य। जैसा मैंने बताया कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समर्थ भारत का निर्माण, उसके लिए का पार्टी काम कर रही है। अब पार्टी के जब आप कार्यकर्ता हो तो पार्टी ये तय करती है कि आप कौन सा काम करेंगे। देखिए, अगर आप समर्पित कार्यकर्ता हैं तो आपके बारे में तय करने का अधिकार आपका नहीं है। एक टीम है जो सोचती है कि किससे क्या काम लेना है। हम मध्य प्रदेश में हम लोग सोचते हैं किससे क्या काम लेना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भूमिका तय कर दे उसको पूरी मेहनत और प्रामाणिकता के साथ निभाना, ये तो मिशन के हिस्से के रूप में आप काम कर रहे हैं। और आपने ये सोचा कि मैं कहां हूं, तो फिर आप उस मिशन का हिस्सा नहीं, फिर आप स्वार्थी हैं। अपने बारे में, काय के लिए देश के बारे में सोचिए, आपके बारे में पार्टी सोचेगी। और फिर इतना विशाल परिवार भारतीय जनता पार्टी का, एक नहीं अनेकों योग्य व्यक्ति हैं। तो ये तो प्रवाह है संगठन का, चलता है तो कुछ रहते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रवाह से बाहर निकलते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, कल जन्माष्टमी थी और कन्हैया ने यही कहा था, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, काम करते चलो। तुम कहा हो इसकी क्या चिंता करना, करने वाले कर रहे हैं। और इसलिए मैं पार्लियामेंट ने पहले दिन भी कहा था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये जो टीम बनी है, मैं माननीय नड्डा जी को हृदय से बधाई देता हूं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा देश उसमें शामिल है। रीजनल बैलेंसेज बनाए गए और एक से एक योग्य कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित किए गए हैं। मुझे कतई ये अहम नहीं है कि मैं बड़ा योग्य हूं। मैं तो पार्टी का आभारी हूं, इतने साल से इतने काम मुझे दिए। मैं हृदय से पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अगर दरी बिछाने का भी कल काम दे दिया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान दरी बिछाने को भी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा मानकर वो काम भी करेगा। ये मन में आ जाना घरे में, तो तुम तो महास्वार्थी हो गए फिर। मैं वो नहीं हो सकता। ये कुशाभाऊ ठाकरे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का बयान लग रहा है। दो छोटे छोटे सवाल। कृषि को लेकर आपकी छवि है, आप किसान पुत्र हैं और बहुत उत्साह के साथ आप योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश की स्थिति में सुधार की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें कुछ विजुअल डिफाइन करते हैं इमेज को। पिछले दिनों कुछ ऐसी छवियां आई जिसमें लहसुन उत्पादक किसान लहसुन की बोरियों को नदी में फेंक रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि सबको उत्पाद का सही मूल्य मिले, कौन सी फसलें समर्थन मूल्य में आ सकती हैं? खेती को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार क्या नया करने जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की भी कोशिश यही है कि किसानों की आय डबल की जाए और कई तरह की योजनाएं हैं उनके विस्तार में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। एक बड़ी संख्या अगर किसानों की आप देखेंगे तो छोटे किसान, 80% किसान छोटे होते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। मैं पिछले साल की आपको बताता हूं, एक ही साल का केवल उदाहरण दूंगा, मध्य प्रदेश के। हमने सोयाबीन की फसल खराब हुई थी किसानों की, तो सोयाबीन की खराब फसल के लिए हमने मध्य प्रदेश में 7,816 करोड़ रुपया किसानों को खाते में डाला था और 3,000 करोड़ रुपया आरबीसी 6-4 के अंतर्गत दिया था और लगभग उसके नुकसान की भरपाई कर दी थी। अब एक बात आता है कि उत्पादन अगर बहुत हो गया तो कई चीजों के तो समर्थन मूल्य तय है, उस पर सरकार खरीदती है। कुछ चीजों के बारे में विचार करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमको कृषि के विविधीकरण का सोचना पड़ेगा। जिस चीज की जितनी जरूरत है मार्केट का असेसमेंट करके वो हम कैसे लगाएं। तो मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया मैं आपको, आपने फार्म गेट की बात कही थी, मैं बिल्कुल नहीं मानता किसानों को बात करो कि मंडी में ही जाके बेचे, क्यों बैठे? अगर कोई दाम उसको घर पे ठीक देता तो घर पे बेचे, अगर खेत पे ठीक देता तो खेत पे बेचे। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने एक योजना बनाई है जिसमें हमने तय किया है, सरकार, किसान और प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति, कोई भी व्यापारी हो सकता है, अगर उसको जरूरत है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, सीहोर के पास अश्वगंधा और तुलसी की खेती हो रही है, जहां पहले गेहूं की खेती होती थी। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब गेहूं की जरूरत कितनी है हम आकलन करें और गेहूं से हम दूसरी तरफ कैसे जाएं? तो किसानों का और कंपनी का आपस में बातचीत हुई, तुम तुलसी लगाओ, अश्वगंधा लगाओ, हम पूरी खरीद के ले जाएंगे, इस रेट पर खरीदेंगे। हमने योजना ये बनाई है कि किसान और प्राइवेट जो भी, केवल कंपनी की बात नहीं करता, कोई और व्यापारी भी हो सकता है, वो रेट तय कर लेंगे कि तुम ये फसल लगाओ, इस रेट पे हम खरीदेंगे। इससे ज्यादा अगर मिले तो किसान बाहर भी बेच सकता है। और जैसे हम एमएसएमईज को या इंडस्ट्रीज को कई तरह की राहत देते हैं, किसानों को भी कई तरह की कृषि उपकरण वगैरह खरीदने में सब्सिडी देते हैं, वैसे ही हम इस तरह की प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति हो या कंपनी हो, उसको भी कुछ सहूलियत देंगे। जैसे पैक हाउस उसको बनाना है, फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, किसान ने कुछ बनाया, हम उसमें कुछ मदद करेंगे, दूसरी कुछ चीजें करेंगे। अभी तक 13 कंपनियां आ गई जिसमें 2 ने काम भी शुरू कर दिया। तो हमको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीरता से और गहराई में जाके विचार करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। इसलिए लगातार कुछ नई चीजें और करते रहने की आवश्यकता है। एक सवाल है, यू हैव डन सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स, आपका नाम भी पहले मामा था, यू लुक्ड आफ्टर। मामा तो अभी हूं। बट अभी तो और एक ऐड किया है, ये बुलडोजर मामा कैसे आ गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना, और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश में डाकुओं का जबरदस्त आतंक था। आप सब जानते हैं, चंबल के बीहड़ों में विशेषकर। हमने उस समय तय किया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विदिन एक साल में हमने डकैत गिरोह सूचीबद्ध या तो समाप्त कर दिए या आत्मसमर्पण कर दिया। तब से लेके आज तक डकैत समस्या ने, कोई छोटे मोटे हो जाते हैं बीच में, लेकिन डकैत समस्या ने उस रूप में सिर नहीं उठाया। इसके बाद एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री जी की गर्दन काट दी गई थी नक्सलवादियों के द्वारा, लेकिन नक्सलवाद को मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दिया। अभी भी हमने एनकाउंटर किए, सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त कर दिया मध्य प्रदेश में। और आप भूले नहीं होंगे, याद होगा कि सिमी के कुछ आतंकवादी अगर जेल तोड़ के बाहर निकले थे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, भोपाल के अगल बगल में एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए सब। तो ये मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये तो हम पहले से कर रहे हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए अगर गड़बड़ किया मध्य प्रदेश में, जी, हमने जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा था, दबंग, गुंडे,
दादा, आपको आश्चर्य होगा कि हमने लगभग 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है उनसे, और वहां गरीबों की स्वराज कॉलोनी हम बसाने वाले, दबंगों से छुड़ा के गरीबों को देने का अभियान हमने चलाया हुआ है। अब वैसे में अगर बुलडोजर चल जाता तो गलत क्या है, लेकिन ये काम हम पहले से करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, सज्जनों के लिए कोमल, दुष्टों के लिए कठोर और कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी और तमाम जी जो आपके विरोधी पार्टी के मित्र हैं, वो नए सिरे से कह रहे हैं कि देखिए निकाय चुनाव में आशा अनुरूप प्रदर्शन नहीं हुआ, ग्वालियर हार गए, बार बार दोहराया जा रहा है, और कई शहरों का जिक्र, और फिर वो शिवराज सिंह चौहान कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे इसको लेकर अपने हिस्से की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आप अपने पुराने मित्र कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप जिस समय जो है वो काम पूरी मेहनत, लगन, प्रामाणिकता के साथ कीजिए। कल की चिंता कौन करे, अपना काम करते चलो। जब जो भूमिका आएगी मस्ती से करेंगे उसको। कमलनाथ जी अपनी चिंता करें, मेरा ये कहना है, और दिग्विजय सिंह जी भी अपनी चिंता करें। जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव का सवाल है, देखो मेरे तो मित्र हैं, और मैं कभी बिलो द बेल्ट जाके मैंने कभी वैसी राजनीति नहीं की है। हमारे वैचारिक मतभेद है, वो डट कर रहेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग मर्यादाओं का पालन करने का हम प्रयास करते हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश को तबाह किया था 2003 के पहले, वो मध्य प्रदेश भी सबने देखा है, और बीच में 15 महीना के लिए मामा चले गए थे, कमलनाथ जी आ गए थे, तो वो 15 महीने भी देखे, और इसलिए जनादेश हमको मिला उपचुनाव में। कांग्रेस के मित्र भाजपा में आए और वो फिर से चुनाव लड़े, इस्तीफा देकर, और फिर से जीत के आए। तो सरकार हमने चलाई तो जनता के, और जीत के भी ऐसे नहीं आए, 64,000 वोट, 57,000 वोट, 52,000 वोट, भारी वोटों से जीत के आए। तो कुल मिला के तबाही से प्रदेश को वो तबाह करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारे मतभेद हैं, बाकी तो वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। स्थानीय निकाय को चुनाव की आप बात कर रहे थे, लगभग 23,000 पंचायत में से 20,000 बीजेपी जीती। नगर पालिका देख लीजिए, नगर पंचायत देख लीजिए, जनपद पंचायत देख लीजिए, जिला पंचायत देख लीजिए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। निकाय के चुनाव में, नगर निगम में अगर कुछ जगह हार गए तो उसका भी विश्लेषण करेंगे, और लोकतंत्र है ये, तो हार गए तो हार को भी स्वीकार करें, और आगे कैसे जीते उसकी योजना बना के आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। लोभ बहुत रहता है जब सत्ताधीशों के साथ बैठते हैं कि खूब सारे सवाल जनता के पूछ लें। मध्य प्रदेश के मामा जी, युवाओं के प्रिय, और ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, आपने यूथ महापंचायत की, मैं खुद उस आयोजन में आया था, तो मैंने आपका इम्प्रॉम्प्टू बिना किसी कागज के भाषण भी देखा, और जिस तरीके से नौजवान लड़के लड़कियां उसको रेसिप्रोकेट कर रहे थे वो भी देखा। जब हमने राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर शिवराज मॉडल को पढ़ना शुरू किया तो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में खूब जाना, और यह भी कि दूसरे राज्यों ने उससे सीखा। आपने वहां पर लाडली लक्ष्मी योजना के अगले चरण के ऐलान किए। तो एक तरफ तो ये शिवराज सिंह चौहान हैं जो लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच मामा के रूप में, भाई के रूप में सहज उपलब्ध हैं, नौजवानों के लिए नई स्कीम का ऐलान कर रहे हैं। इसके पैरेलल एक सवाल है जो सोशल मीडिया के ट्रेंड से आता है कि एमपी में रेगुलरली पीसीएस की भर्ती नहीं आती है, और तमाम दूसरी सरकारी भर्तियों को लेकर नौजवानों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। मामा जी, मुख्यमंत्री जी एक तरफ ऐलान कर रहे हैं रोजगार का, क्या वो अपने नौजवान मित्रों को, जिनके वो मामा हैं, ये आश्वासन दे सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से पिछली सारी भर्तियों को पूरा किया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है, इल्जाम लगे हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, कि भविष्य में एक ऐसा रोड मैप बने, ऐसी फुल प्रूफ चीज बने कि नौजवान लड़के लड़कियों को अपने हिस्से की नौकरी के लिए अंतहीन इंतजार ना करना पड़े। आपने उस समय भी युवा सम्मेलन में देखा था, रोजगार को लेके मैंने इस पर शिक्षा और रोजगार दोनों, एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना मैं बताना चाहूंगा, जिसमें हमने तय किया है गरीब बेटा बेटी हो, किसी भी जाति समाज का, लोअर मिडिल क्लास का हो, इवन मिडिल क्लास का हो, 8 लाख रुपए की आमदनी पर ईयर तक हमने जोड़ा है। अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIM,
मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होता है, देश में होता है, कहीं विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। ये फैसला हमने किया था, उस समय मैंने आपको बताया था, ताकि प्रतिभा कुंठित ना हो पाए। अभी जो मैंने आपको जॉब्स की बात कही है, पिछले दिनों सम्मानी कोर्ट के फैसलों के कारण कुछ चीजें अटकी थी, अब उसमें से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और 1 लाख सरकारी जॉब के साथ साथ स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से लगभग 32 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का बाकायदा रोड मैप। कुछ तो भर्तियां हो ही गई है, 15-20 हजार शिक्षकों की भर्ती हो गई है अभी, पुलिस की भर्ती अभी 6000 चली रही है, ये शुरू हो रही है, कुछ इसके पहले हुई। ये पिछले वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अकेले हमारे पुलिस की जो भर्तियां हुई है वो ही लगभग 40 से लेकर 50 हजार के आसपास हुई है पहले मेरे शासनकाल में। शिक्षकों की भर्ती हुई है लगभग 2 लाख मेरे ही शासनकाल में। आगे फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए मैंने जो कहा है, बच्चों को हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे और मैंने कहा था कि धन के अभाव में प्रतिभा कुंठित ना हो इसके भी इंतजाम करेंगे। बच्चे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और प्रदेश को भी आगे बढ़ाते रहें, ये हमारी कोशिश होगी। मुख्यमंत्री जी, TCS के एग्जाम जस्ट 3 minutes लेफ्ट, बिट ऑफ नेशनल क्वेश्चन आपके लिए। बिहार में जो सरकार बदल दिया, नीतीश कुमार जैसे he walked out of the BJP and joined with RJD. What is your view on this development? देखिए, पार्टी ने नीतीश जी को पूरा सम्मान दिया था। छोटी पार्टी होने के बाद भी समता पार्टी के उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा था। मैं मानता हूं कि अब नीतीश जी के दिमाग में क्या आया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से उन लोगों के साथ जिनका हवाला देके उन्होंने सरकार तोड़ी थी, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया कि सरकार तोड़ी थी। मैं दोहराना नहीं चाहता उन शब्दों को, करप्शन से लेके कितनी चीजें थी, और फिर उन्हीं से हाथ मिला लेना, ये अवसरवाद का निकृष्टतम उदाहरण मैं मानता हूं, निकृष्टतम उदाहरण। और अब जो चर्चा हो रही है आजकल, 2-4-5 दिन में जिस ढंग की चर्चा आई वो बिहार के लिए शुभ नहीं है। बिहार में विकास के नए आयाम एनडीए की सरकार ने स्थापित किए थे लालू जी के राज के बाद। ये बिहार के साथ मुझे लगता है बिहार के विकास के साथ धोखा हुआ है, ये ठीक नहीं किया नीतीश जी ने। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका समर्थन करेगा और कल जनता भी न्याय करेगी। जो कदम नीतीश जी ने उठाए हैं उसके साथ कोई नहीं जा सकता। You do not think Nitish ji is a rival to Modi ji for prime ministership? देखिए, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो स्टेचर है आज, अब आप भी बाय हार्ट सोचिए, मोदी जी केवल आज देश के नेता नहीं हैं, कई मामलों में दुनिया को लीड कर रहे हैं। और इसलिए मोदी जी और किसी की तुलना करना मैं नहीं मानता कि कहीं उचित, कोई बाकी प्रतिस्पर्धा का तो मैं सवाल ही नहीं मानता। आज भी मोदी जी हैं और कल भी मोदी जी होंगे। और राहुल गांधी का बारे, वो आजकल बोल रहे मोदी से डर नहीं हूं मैं, काला पेन नहीं, अगर डरते नहीं तो कहते काय को बार बार मैं नहीं डरता। अब जो नहीं डरता उसको कहने की जरूरत थोड़ी है। देखिए, राजनीतिक परिपक्वता मुझे कहीं दिखाई नहीं देती कांग्रेस, मतलब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि कोई अनावश्यक आलोचनाएं करूं, लेकिन जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनको, तो लोग गंभीरता से लेने ही उनको बंद कर दिया लोगों ने। एक मैंने Last बोल दिया था question आखिरी, and then बिल्कुल we'll- आखिरी सवाल, शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा क्या है? क्या अब और क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरी पार्टी मुझसे जो काम करवाएगी मैं वही काम करूंगा, क्योंकि मैं दोहरा रहा हूं, मैं एक बड़े मिशन का हिस्सा हूं। उसमें मैं कहां रहूंगा ये मैं कभी नहीं सोचूंगा। कई बार गाहे बगाहे दिल्ली आओगे कि वहां जाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। पार्टी कहेगी जैत में रहो तो जैत में रहूंगा, पार्टी कहेगी भोपाल में रहो तो भोपाल में रहूंगा, पार्टी और कुछ कहेगी तो वो करूंगा। देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रख के आप कभी देश का भला नहीं कर सकते, और हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और सबसे अंत में हम। Wow. With that words, let's give him a very warm round of applause. Thank you, Shivraj. Thank you very much for this. Thank you. Thank you.
15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान होंगे अगले सत्र में ज्योतिराय सिंधिया।